Recording. Okay, so today we will start to discuss about push down automata. So it is somewhat similar to uh, the finite automata, but there would be some additions there too. Now, if you recall, when we discussed about finite automata, once we passed, say, from this state to other state, correct? This state to other state, we never remembered what input we took here when we move from this state to this state. Once it is done, we never looked back and seen what is the output or what is the input taken. Correct? But now, if at all we have to address such kind of aspect, we definitely require some additional memory. Correct? So additional memory would be required to keep this information. Now, if at all this additional memory is required, then how exactly we are going to make use of it? This will be one important question in front of us. To do so, what happens here with push down automata? Suppose this is the tape, like a memory, which we are reading data from. Now, the tape I mean to say, this is input one. Okay, this is input, and if it is divided, say, in terms of some blocks. Okay, these are memory locations. Now, whatever you read here, if you keep track of what exactly you have seen, for example, if I say regular grammar, we always saw that regular grammar was having this kind of form. Correct? So we always know what is the input that is taken. Correct? So after seeing this input, we always move toward further. Correct? Even when we do talk about NFA, when we talk about DFA, either of them, we always have seen and verified, like depending upon what was the input that was expected to be taken. Now, if I pass, say, from this state to this state by taking input, now next would be what? I'm going to see what would be the next input. I don't remember what exactly I did here. So there might be these two cases. Now, if at all I have to remember this, we will require similar kind of structure, like there would be memory, there would be read head, and we are talking about. So this is input tape. This is additional memory. This additional memory is a stack, referred as push down stack. Correct. And this push down stack would be used to always keep information about what exactly we have got earlier. Correct. So this stack would be in the similar way, the way that we see stack in data structures. There would be top, there would be push pop operations and so on. So if at all I have to define this push down automata, I do define it in this way. Correct. Say, for example, if I have to define a push down automata, we saw that when we defined DFA or NFA, we always have taken 5 inputs, correct? Q, sigma, delta, Q0, F. Here we are going to have more things. We will be having Q, sigma, okay. Then we are going to have tau, delta, Q0, Z0, and F. Okay, these would be the 7 items that we are going to see. Now this would be same thing the way that we saw earlier. So this would be states. Again, we are going to write finite non-empty set of states. This would be inputs. This would be something which is going to address this. So stack elements. These would be stack elements. This Q0 would be, as usual, initial state. Z0 would be top of stack. F would be final states. Now, with push down automata,
Okay, with push down automata, this one, we never say that this F would be non-empty. This could be empty, this could be non-empty, depending upon how exactly you are implementing this push down. We are going to do the same thing. Like for example, okay, let me talk about this A raised to B, A raised to N, B raised to N. Can you give me DFA for this A raised to N, B raised to N? हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या A raised to N, B raised to N के DFA को? कैसे कर सकते हैं? सपोज ऐसे मैं करता हूँ, ये A लिया, करेक्ट, यहाँ से फिर से A दे दिया और यहाँ से B दिया, इसको फाइनल कह दिया, इसको फिर से वापस B दे दिया। अगर ये मेरा इनिशियल है तो आप ये गारंटी दे सकते हो कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स A लेगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स B देगा? क्या लगता है आपको? ये DFA जैसा दिख रहा है ना साक्षी? यस सर, है ना? DFA दिसतोय? Yes, sir. If it looks like a DFA, but can it accept A raised to N, B raised to N? बघा बरं, A, B, एक्सेप्ट होगा इससे? आप बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6, है ना? बट ऐसे हुआ तो 1 2 1 2 3, तो ये कैसे होगा? यहाँ पर कितने बार A raised to N था, N टाइम्स रिपीट किया, ये यहाँ पर रिमेम्बर कैसे करेंगे? करेक्ट? प्रॉब्लम समझ रहे हो? यस सर, यस सर, है ना? तो अगर ये है तो इसको हम रेगुलर लैंग्वेज बोल सकते हैं क्या? क्योंकि उसको DFA बना नहीं सकते अगर इसका, तो ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, करेक्ट? अगर ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है तो कौन सा लैंग्वेज होगा? तो दिस वुड बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और पुश डाउन ऑटोमेटा हमेशा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के साथ काम करेगा, CFL के साथ, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के साथ ही काम करेगा हमेशा, करेक्ट? तो अभी ये जो डेल्टा रहेगा, वो डेल्टा कैसे रहेगा? तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये इसी से स्टार्ट करते हैं, A raised to N, B raised to N जो लिया ना हमने, इसी से। अगर इसका मुझे निकालना है कितने बार A आया कितने बार B आया, सपोज मेरा इनपुट स्ट्रिंग ऐसा है, और मैं लास्ट में अभी मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, ये जो स्टैक बोला ना हमने थोड़ी देर, जो स्टैक बोला, ये स्टैक है ना। आप देखो, आपने अभी वेलकम पार्टी दिया था बच्चों को, करेक्ट? अभी आपने खाना मंगवाया था वहां पर, तो जो डिशेस थे वो कैसे ऑर्गेनाइज किए थे? स्टैक जैसे थे, एक डिश पर दूसरा डिश, दूसरे डिश पर तीसरा डिश, ऐसे था, है कि नहीं? कहीं पे भी खाना Yes, sir. खाने का आप तो वैसे रहेगा ना। तो आप क्या करते हो, ऊपर वाला डिश उठाते हो जनरली, दैट इज टॉप ऑफ द स्टैक। तो मैं क्या इमेजिन कर रहा हूँ, ये जो टो है ना मेरा, ये टो, ये मेरा डिशेस है, अलग अलग कलर के डिशेस। तो मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे पास एक रेड कलर वाली डिश है, ब्लू कलर वाली डिश है, ग्रीन कलर वाली डिश है, व्हाइट कलर वाली डिश है, अलग अलग कलर्स की डिशेस है, करेक्ट? ये ऐसे मेरा इमेजिनेशन है। इसमें से मैं कितने यूज करूंगा प्रॉब्लम के हिसाब से चेंज होता रहेगा। और ये जो Z0 रहेगा ना, हमेशा मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरा जो टॉप ऑफ द स्टैक है ये वाला, ये मेरा Z0 है। ये Z0 हमेशा इसमें से एक रहेगा। Z0 बोल रहा हूँ मैं। देखो मैंने किसके बारे में बात की? Q के बारे में। क्या था वो? सेट ऑफ स्टेट्स। सिग्मा क्या था? सेट ऑफ इनपुट। जो ये टेप रहेगा, मतलब ये जो अभी मैंने लिखा ना, ये रेस्टोरेंट भी रेस्टोरेंट, ये रहेगा। तो क्या रहेगा? स्टैक पर क्या एलिमेंट्स होंगे वो। तो मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि स्टैक पर है ना मेरे डिशेस है अलग अलग कलर की, तो उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना, ये मेरा फॉर्मूला रहेगा। सो रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, अलग अलग हो सकते हैं कैसे, ठीक है? डेल्टा के बारे में हम बात करेंगे। Q0 जो रहेगा वो मेरा हमेशा इनिशियल स्टेट रहेगा बिलोंगिंग टू Q, राइट? है ना? Q0 हमेशा Q में से होता है, करेक्ट? यस सर, ओके। अभी ये जो F है ये मेरा फाइनल स्टेट्स है। अब तक कैसे किया था हमने DFA NFA में, कि हमने ऑलवेज बोला था कि फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, ऐसे बोला था, तो नॉन एम्प्टी बोला था। तो लेकिन यहाँ पे कैसे है, कुछ केसेस में एम्प्टी भी हो सकता है, ये फाइनल स्टेट जो है ना एम्प्टी भी हो सकता है, कुछ केसेस में वहां पर फाइनल स्टेट हो सकती है। सो वी विल नॉट से फाइनाइट
नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट, इट इज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जीरो भी हो सकता है, काउंटेबल है ना जीरो, तो इसीलिए एफ में भी एम्प्टी और नॉन एम्प्टी वी डोंट नो, बट इफ इट इज नॉन एम्प्टी देन वो क्यू में से ही चाहिए, ऐसे हमारा इमेजिनेशन है। करेक्ट, ठीक है। अभी ये जो Z0 है, ये Z0 हमेशा हम बोलेंगे कि ये Z0 जो टॉप ऑफ द स्टैक है ना, वो बिलोंगिंग टू टू स्टैक एलिमेंट में से होना चाहिए। तो अगर मेरे स्टैक एलिमेंट्स ऐसे है, इसमें से मुझे लेना है, तो मैं हमेशा मान रहा हूं कि मेरा जो टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा उस Z0 की जगह पर मैं हमेशा लिखूंगा R, मतलब रेड। रेड मेरा हमेशा एक ही बार आएगा, बाकी सारे प्लेट्स अलग है, मतलब ये खत्म हो गए डिशेस मेरे, तो मैं दूसरा स्टैक लाके रखता हूँ, तो हमेशा ये खत्म हुआ, ये मुझे पता कैसे चलेगा? अभी हमें क्या ऐसे विजिबल होता है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? तो अगर मैं डिश की बात करूँ, ऐसे डिश एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, तो वी कैन सी वहां पर डिश है कि नहीं है। बट अगर ये कंप्यूटराइज करना है मुझे, तो मुझे हमेशा बताना पड़ेगा, तो आप इंडेक्स यूज करते हो ना, जीरोथ इंडेक्स एरे के हिसाब से। करेक्ट, आप एरे के हिसाब से जीरोथ इंडेक्स लेते हो, बट यहाँ पर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरा जो इंडेक्स रहेगा वो इंडेक्स ना होते हुए मैं रेड कलर का प्लेट देखता हूँ, मतलब हमेशा मुझे रेड मिल गया, मतलब मेरा स्टैक में का ऊपर का सारा एम्प्टी है, सिर्फ एक स्टैक पर एक रेड प्लेट बचा हुआ है, ऐसे मेरा इमेजिनेशन है। तो अभी मुझे ऐसे, ये जो टेप है ना मेरा, इस टेप पर मेरा इनपुट रहेगा ऐसे। तो अगर ऐसे मुझे बोला गया डिजाइन अ पीडीए और CFL L इक्वल टू A⁻n B⁻n n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे अगर बोला, तो मेरा हमेशा इमेजिनेशन क्या होगा? इसमें से जो ये जो सेट है ना, A⁻n B⁻n वाला, इसमें से कोई भी एक स्ट्रिंग मेरा टेप पर होगा, और स्ट्रिंग के एंड में ये वन साइड टेप है, ये वन साइड क्लोज है, ये वन साइड क्लोज था, ये उधर मैंने ऐसे लिखा है ना, इधर कुछ डॉट 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 जैसा है, मतलब इट मे बी इनफाइनाइट स्टेप बट वन साइड इज क्लोज्ड। तो हमेशा मेरा मेमोरी जो रहेगा, ये जो टेप रहेगा, रीड राइट रीड इनपुट टेप, ये रीड इनपुट टेप है, ये रीड मोड में रहेगा हमेशा, ये रीड हेड है मेरा। करेक्ट, मैं तो मतलब ये ऐसे रखता हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं अभी ए को देख रहा हूँ, मैं अभी दूसरे ए को देख रहा हूँ, मतलब मैं दूसरे ए को देख रहा हूँ, फिर मैं बी को देख रहा हूँ, फिर मैं बी को देख रहा हूँ, फिर मैं बी को देख रहा हूँ। जहां पर मेरा स्ट्रिंग एंड होता है वहां पर हमेशा मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि उसके बाद हमेशा एप्सिलॉन है, ये हमारा इमेजिनेशन। जहां पर आपका इनपुट स्ट्रिंग नहीं है वहां पर आपका हमेशा एप्सिलॉन है। अभी हमारे हिसाब से ये जो स्ट्रिंग मैंने लिखा है, ये इसमें है क्या? ए रेस्टोरेंट बी रेस्टोरेंट में नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बी सेम है, सेम है कि नहीं है? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. सेम है ना? Yes. अगर ये सेम है, ये हमें विजिबल है, बट हम प्रूव कैसे करेंगे मशीन के हिसाब से? तो उसके लिए हम क्या इमेजिन करेंगे कि हमारे पास Q0 है, जो इनिशियल स्टेट है हमारा। ठीक है, हमेशा हम डेल्टा के हिसाब से लिखेंगे। अभी मैं डेल्टा की डेफिनेशन दे रहा हूँ। डेल्टा क्या होता है मेरा? मैं एक स्टेट लेता हूं, कोई भी क्रॉस इनपुट लेता हूं। देखो आपको याद होगा क्यू क्रॉस सिग्मा गिव्स क्यू, ऐसे लिखा था हमने डीएफए में। एनएफए में क्या लिखा था? 2:q लिखा था। यहां पर क्या लिखेंगे? क्यू क्रॉस सिग्मा क्रॉस, अब ये तीसरा एलिमेंट ये जो रहेगा ये मेमोरी रहेगा, ये आपका डेल्टा है। मतलब पेयर कैसे आएगा? एक स्टेट आएगा, एक इनपुट आएगा और एक एलिमेंट होगा, इसमें से एक कोई, ऐसे मेरा ये डेल्टा का फंक्शन रहेगा जिसमें ट्रिपलेट आएगा। और ये हमेशा जो देगा, ये जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, मतलब अभी इमेजिन करो इस स्टेट से हम इस स्टेट पर जा रहे हैं सपोज, या इस स्टेट से उसी स्टेट पर रह रहे हैं, सो इन दैट केस हम ये मान के चलेंगे कि मैं इस इनपुट को प्रोसेस कर रहा हूँ, इनपुट को प्रोसेस करते ही मैं स्टैक पर भी ऑपरेशन करूंगा। तो मेरे स्टैक पर ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं? एक पुश हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? पॉप। करेक्ट, पुश और पॉप। अगर पुश है तो मैं इसका इमेजिनेशन ऐसे कर रहा हूं कि सपोज मैं ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ Q1 gives VR, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी मैं इस पर A देखता हूं, जब भी मैं यहाँ पर A देख रहा हूं, ठीक है, और मेरे स्टैक में R है,
मैं रीड हेड से ए देख रहा हूँ, ये ए मेरा मशीन इनिशियल स्टेट में था, मुझे ए मिला, यहाँ पर आर है। अगर ऐसा है तो मैं इससे आगे जाऊंगा नेक्स्ट इनपुट पर, बट वो करते ही ये जब कर रहा हूं आगे तो मैं स्टैक पर एक एलिमेंट पुश कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल बी। ऐसा इसका इमेजिनेशन है। ठीक है, समझ में आया ये क्या हुआ? देखो एक बार और पूछो कोई सवाल होगा तो। हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेप पर हमारा इनपुट सिंबल है, इसमें से कोई भी एक स्ट्रिंग उठाओ, ये लिख लो ऐसे, ये हमारे लिए लिखा हुआ है सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं मेरा डेल्टा दे रहा हूं, डेल्टा कैसे लिख रहा हूं मैं, क्यू क्रॉस सिग्मा क्रॉस टो गिव्स क्यू क्रॉस टो स्टार। अभी स्टार मतलब क्या, इनका कॉम्बिनेशन कोई भी, करेक्ट। बट इनका कॉम्बिनेशन करते टाइम आप इसको लिखोगे कैसे, टॉप पर क्या है अभी, अगर मैं ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहा हूं, टॉप पर क्या है मेरा, टॉप पर क्या है, बी। इसको एग्जीक्यूट करने से पहले टॉप पर क्या था, आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने ए इनपुट देखा टेप पर, जो ए था, ये वाला ए, और मेरे स्टैक में आर था, और मेरा इनिशियल मतलब जो भी स्टेट था वो Q0 था, तो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ पुश का, बट साइड बाय साइड मैं स्टेट को चेंज कर रहा हूँ, या हमें डिसीजन लेना है कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये। तो इसीलिए ये बी आर हुआ ना, आर था टो का एलिमेंट, तो यहाँ पे बी आर लिखा, मतलब अगर मेरे पास ऐसा आर वी जी डब्ल्यू कुछ है, उसमें से मैं दो को उठाता हूँ, तो बी आर कॉम्बिनेशन हो सकता है कि इसका इसका सिग्मा स्टार निकालू तो, सॉरी इसका अगर स्टार निकालू तो क्लोजर निकालू तो हो सकता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है ना इसका कोई भी, है कि नहीं। तो मेरा पहला ट्रांजिशन फंक्शन रहेगा ऐसे, इस प्रॉब्लम के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि मेरे स्टैक पर अभी हम सिर्फ इस साइड में एक ही एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पर देखो मैंने टो ही लिखा हुआ है, करेक्ट। यहाँ पर टो स्टार लिखा है क्या, नहीं। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स लिखे हैं, इतने कितने भी हो सकते हैं, स्टार है इसका मतलब एप्सिलॉन भी हो सकता है। तो ये हुआ मेरा पुश ऑपरेशन, करेक्ट, ये मेरा हुआ पुश ऑपरेशन। अभी स्टेट कौन सा है बोलो, Q1 Q1, यहाँ पे Q1 लिखो। अभी ये इनपुट हमारा हो चुका है, करेक्ट, इसको ऑपरेशन किया ना हमने, तो अभी हमारा रीड हेड यहाँ पर है, तो अभी नेक्स्ट इनपुट क्या है, ये मेरा रीड हेड है, ऐसे इमेजिन करो। मेरा इनपुट क्या है नेक्स्ट, A ए, तो फिर से ए लिखेंगे। अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, तो इधर जाओ, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, B बी, यहाँ पे लिखेंगे। अभी हमें क्या करना है, मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, देखो आपको ऐसे बोला कि जितने रेड बॉल्स है उतने ग्रीन बॉल्स है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शंस कैसे है, तो आप क्या करोगे, पहले रेड को काउंट कर लो, फिर ग्रीन को काउंट कर लो। लेकिन हमने देखा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, रेड को काउंट किया तो फिर हमें पता कैसे चलेगा ग्रीन भी उतने ही है या ब्लू भी उतने है, वो दिक्कत होगी ना हमारे लिए, है कि नहीं। अगर हमने ऐसे किया कि क्या किया कि सारे रेड एक साइड में कर दिए, सारे ग्रीन, सॉरी सारे, हाँ ठीक है, रेड और ग्रीन लेते हैं हम सपोज हमारे एग्जांपल के लिए, रेड और ग्रीन। हमारे पास अगर 3 रेड है और 3 ग्रीन है, लेकिन हमें ये देखना है कि दोनों साथ में है, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तीनों को रख लेंगे। इधर से जब भी एक मिलेगा ना, तो एक एक यहाँ से एक उठाएंगे, यहाँ से एक उठाएंगे, बाहर रख देंगे, यहाँ से एक उठाएंगे, यहाँ से एक उठाएंगे, बाहर रख देंगे, यहाँ से एक उठाया, यहाँ से एक उठाया। तो ये करने के बाद क्या हुआ कि हमने तीनों बॉल का पेयर कर लिया, किया कि नहीं, करेक्ट, Yes करेक्ट। sir. तो फिर अगर ऐसे करना है तो मैं वही इमेजिन कर रहा हूँ कि जैसे मैं स्टैक पर डाल रहा हूँ एलिमेंट्स, तो मैं हर ए के लिए ब्लू डालना चाहता हूँ, और जब ये बी आएगा तो मैं हर जो ब्लू प्लेट डाला है उसको निकाल रहा हूँ। देखो क्या हुआ, 1 2 3। अगर मेरे साथ ऐसा है, ये मेरा फर्स्ट स्टैक का एलिमेंट है, ये दूसरा एक एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, 3 एज आए मेरे, तो ये तीनों के लिए पुश किया। अभी बी मिला तो मैंने इसको पॉप किया, इसको पॉप किया, इसको पॉप किया, इसका मतलब बचेगा क्या लास्ट में, आर। जितना पुश किया उतना पॉप कर लिया, करेक्ट।
तो जितना पुश कर लिया उतना पॉप कर लिया, तो अल्टीमेटली हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज सेम है, करेक्ट? यस सर। अभी यहाँ पर देखते हैं, अभी हमने क्या सोचा है, जब भी ए आएगा स्टैक पर कुछ भी हो हम ब्लू पेड डालेंगे। तो अभी अगर मुझे ऐसे लिखना है तो मुझे ये रिकर्सिवली अप्लाई करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ बी बी, ये प्रीवियस वाला ब्लू, ये नया वाला ब्लू, तो ये भी क्या हुआ मेरा पुश ऑपरेशन, करेक्ट? तो ये भी मेरा ए हो गया, यहाँ पर आया बी, एम आई राइट? समझ रहे हो? डोंट वरी, हम फिर से देखेंगे, बट इतना समझ में आया कि हमने क्या किया, यहाँ पर पहले आर था तो हमने पहला ए मिला तो हमने ब्लू प्लेट डाला, जब भी ए मिलेगा तो हम ब्लू प्लेट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर कितने ब्लू प्लेट्स आएंगे एज के लिए? 3। 3 है ना, बराबर है? तो अभी कितने हुए? Yes. 2, क्योंकि हमने 2 एज को प्रोसेस कर दिया। हाँ कोणतरी बोलत होतं। ठीक है चलो, सो अभी मेरा ये हो गया, तो मेरा ये इनपुट हो गया, ये मेरा ब्लू, मतलब ऐसे हो गया सिनेरियो। अभी अभी मेरा नेक्स्ट इनपुट क्या है? ए। फिर से ए आया, अभी हम कौन से स्टेट में है? Q1 हमें इनपुट क्या है? ए ए। स्टैक पर क्या है टॉप में? बी। तो हमारा यही आ गया, यस सर। करेक्ट? फिर से यही इनपुट हुआ, तो इसको हमने प्रोसेस किया, यहाँ पर डाल दिया ब्लू, है राइट? यस सर। ठीक है ना, उसी को पुश किया, मतलब इसको 2 बार यूज किया। तो अभी हमारा नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। अभी इनपुट क्या आया? ये तीनों हो चुके हैं ना, अभी 3 एज के लिए 3 ब्लू आ गए। अभी बी आया, हमारा स्टेट कौन सा है? Q1, करेक्ट? स्टेट Q1 ही है ना? यस सर। इनपुट क्या आया? बी, बी ये वाला ना। टॉप पर क्या है? बी। हमने क्या कहा था कि जितने एज है हर ए के लिए अगर ब्लू प्लेट डाला तो हर बी के लिए निकाल लिया। जैसे मैंने रेड ग्रीन का एग्जांपल दिया था ना, हमने रेड और ग्रीन अलग अलग कर लिए, ग्रीन उठाया तो साथ में रेड उठाया, तो वो बाजू में रख दिए। फिर से ग्रीन उठाया, रेड उठाया, बाजू में रख दिया, ग्रीन उठाया, रेड उठाया, बाजू में रख दिया, तीनों के तीनों सैंपल हो गए। उसी तरीके से मैं अभी हर ए के लिए जो ब्लू डाला हुआ है, हर एक बी के लिए मैं एट अ टाइम एक बी के लिए एक ब्लू पॉप कर लूंगा। तो ये लिखने के लिए पॉप ऑपरेशन है, इसलिए मैं स्टेट चेंज कर रहा हूं। ये हो गया मेरा पॉप, ऐसे लिखूंगा मैं Q2 एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है पॉप। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये निकल गया। अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? ये वाला ब्लू, करेक्ट? ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? ये, क्योंकि हमने यहां पर पॉप कर लिया, हमारा ये भी प्रोसेस हो चुका है। अभी स्टेट बोलो कौन सा है? Q2 Q2। नेक्स्ट इनपुट क्या है? बी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? बी। तो हमें क्या करना है, जब भी बी और बी का कॉम्बिनेशन आए तो हमें पॉप करना है, करेक्ट? तो इसके लिए फिर से हम ऐसे लिख देंगे Q2, क्योंकि पॉप ऑपरेशन रिपीटेडली करना है इसलिए मैंने पॉप कर लिया। तो ये बी हो चुका, ये बी निकल गया, अभी यहां पर है, करेक्ट? ठीक है, इस बी पर है। फिर से हम कौन से स्टेट में है? Q2 इनपुट क्या है? बी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? बी। यही अप्लाई होगा, ये प्रोसेस हुआ, इसको पॉप किया। अभी यहां पर कौन सा स्टेट है?
स्टेट देखो कौन सा है, Q2 Q2 है ना, है कि नहीं? हाँ, इनपुट में क्या है अभी, ये तो सारे हो चुके हैं, इनपुट पर क्या है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन। टॉप ऑफ द स्टैक क्या है अभी, R आर। अगर ये है तो यहां पर ऐसे लिख दो QF QF R। यहां पर QF ये मेरा फाइनल स्टेट रहेगा, R मतलब मैंने स्टैक में कुछ नहीं किया, स्टैक को वैसे ही रखा, ठीक है? तो ये ना पुश हुआ ना पॉप हुआ, सिर्फ ऑपरेशन हुआ, यहां पर कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ प्रोसेस किया इस इनपुट को, और क्यूएफ में चला गया। और क्यूएफ को अगर मैं ट्रांजिशन नहीं लिख रहा हूं नीचे, इसका मतलब अभी आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है? अभी हम दूसरे एग्जांपल के साथ, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको दूसरे एग्जांपल के साथ वर्कआउट करेंगे। बोलो एक प्रॉब्लम कोई भी, a⁻² वाला बोलो, इसमें जो फिट हो सके ऐसा स्ट्रिंग लो पहले। a⁵ b⁵ ले, यस सर चलो a b b a b b, ठीक है? मैं ऐसे लिख रहा हूँ, विदाउट ऐसे बॉक्स में मैं लिखते हुए ऐसे लिखता हूँ, ठीक है? इसको हम क्रॉस करते जाएंगे। अभी ये जो रहेगा हमारा, ये स्टैक रहेगा, स्टैक में हमेशा क्या रहने वाला है, आर, करेक्ट? ठीक है, ठीक है ना? ये सिनेरियो ना, इनिशियली हमारा स्टेट कौन सा है, Q0। अभी पहला हम Q0 में है, स्टेट Q0 है। अभी इनपुट मेरा है ये, स्टैक पर क्या है, Q0A R Q0AR क्या करता है, यहाँ पे देखते हैं। Q0AR क्या करता है, ये स्टेट चेंज होता है, ये आ जाता है Q1, यहाँ पर आ गया, करेक्ट? ठीक है? यस सर अभी स्टेट क्या है, ये हो चुका हमारा ना, स्टेट क्या है, Q1 Q1। इनपुट क्या है, A टॉप पर क्या है, B Q1AB क्या होता है, देखो डेल्टा Q1AB क्या होता है, Q1। BB इसका मतलब यहां पर हम एक पुश कर लिया, स्टेट को वैसे ही रखा, ये प्रोसेस हुआ, करेक्ट? ठीक है इतना? अभी स्टेट कौन सा है, Q1 Q1। इनपुट क्या है, A A। टॉप पर क्या है, B तो वही फंक्शन फिर से अप्लाई होगा, Q1BB। तो यहां पर डाला हमने फिर से ब्लू, ये प्रोसेस हो चुका, करेक्ट? yes ठीक है, फिर से स्टेट क्या है, Q1। Q1 इनपुट A स्टैक पर क्या है, B फिर से क्या होगा, यही अप्लाई होगा, करेक्ट? और एक पुश हुआ, ये प्रोसेस हो चुका, फिर से Q1AB क्या है, Q1AB, B फिर से ब्लू प्लेट डाल दिया, करेक्ट? ये प्रोसेस हो चुका। अभी स्टेट क्या है, Q1 इनपुट क्या है, B अभी स्टैक पर क्या है, B Q1BB क्या करता है, Q2 epsilon इसको पॉप कर लिया, स्टेट चेंज हो गया Q2, करेक्ट? ठीक है, yes ये हमारा प्रोसेस हो चुका। अभी स्टेट क्या है, Q2 इनपुट B स्टैक पर क्या है, B Q2BB क्या करता है, पॉप, पॉप करेगा B करेक्ट? ये प्रोसेस हो चुका है। अभी नेक्स्ट फिर से Q2BB क्या होगा, पॉप
फिर से ये प्रोसेस हो चुका है। Q2B पॉप होगा बी। फिर से पॉप, ये प्रोसेस। Q2B लास्ट बी पॉप। फिर से पॉप होगा, है ना। Q2 ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर आर चले गए, क्यू एफ। इसका मतलब हम क्यू एफ में आ गए, मतलब फाइनल स्टेट को पहुंच गए। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेप्टेड। करेक्ट। इसका मतलब ये जो हमने डेफिनेशन दिया हुआ है पीडीए, ये पीडीए का डेफिनेशन है, ये इन दोनों स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे। इसका मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग जो ये पैटर्न फॉलो करेगा, हर एक स्ट्रिंग के लिए वर्कआउट करेगा। कौन सा भी स्ट्रिंग लो आप, a⁻10 b⁻10 लो, a⁻10 को क्या होगा, 10 टाइम्स लूप जाएगा, करेक्ट। और हर एक बी को जो b⁻10 था, हर एक बी को 10 टाइम्स पॉप हो जाएगा, करेक्ट। बाद में क्या बचेगा, सिर्फ आर, तो यही फाइनल में आएगा। अभी हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी कि जो वर्कआउट ना हो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, a⁻3 b⁻4, ठीक है। अभी हमारे हिसाब से यहाँ पर फिट होगा क्या, होना चाहिए क्या, ये बिलोंग नो सर, करेगा किस सेट को, नहीं नो ना, सर। क्यों। सर क्योंकि ए का पावर 3 और बी का पावर 4 है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ टाइम्स ए इज ऑकरिंग इज हाँ, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बीज दैट आर ऑकरिंग, करेक्ट, है ना। यस सर। तो अभी ये वर्कआउट नहीं होना चाहिए। चलो इसको ट्राई करते हैं। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे आर, शुरुआत फिर से, ठीक है। Q0 से शुरुआत फिर से, ये बाद में एप्सिलॉन है हमारा। Q0 ए आर क्या होगा, Q0 ए आर बोलो क्या होगा, बी Q1 बी आर। ये होगा Q1, ये प्रोसेस, करेक्ट। Q1 ए बी बी आएगा। Q1 ए बी बी Q1 बी बी पॉप होगा बी। Q2 है ना, हाँ Q2 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 एप्सिलॉन, करेक्ट। Q2 बी बी पॉप होगा बी। ये पॉप, ये निकल गया, ये पॉप। Q2 बी बी पॉप ये होगा बी। प्रोसेस, ये पॉप। Q2 बी आर यहाँ पर है, Q2 बी आर क्यू एफ। नहीं यहाँ पे Q2 देखो बी आर। Q2 बी आर नहीं है है क्या, नहीं है नहीं नहीं है, है। इसका मतलब ये स्ट्रिंग फिट नहीं हुआ यहाँ पर, करेक्ट। तो यहाँ पर डेफिनेशन नहीं, इसका मतलब वो वहां पर स्टक हो जाएगा, करेक्ट। यस सर। स्टक हो गया मतलब क्या, प्रोसेस नहीं कर पाया, तो कंक्लूजन रहेगा नॉट एक्सेप्टेड। अभी यहाँ पर हमने लिया था 3A 4B, अभी उल्टा करते हैं, 4 A's लेते हैं, 5 A's लेते हैं, 3 B's करते हैं। कोई भी ऐसे जो जो यहाँ पर ना फिट हो ओरिजिनल इसमें, ठीक है। अभी आपको देखो यहाँ से लगा सकते हो अंदाजा, 5A के लिए 5 ब्लू जाएगा, करेक्ट, है ना। लेकिन उसमें से सिर्फ 3 को पॉप करेगा, बाकी 2 तो बचे रहेंगे वहां पर, है कि नहीं। चलो करते हैं फिर से। Q0 तुम्हारा इनिशियल, Q0 ए आर क्या होता है, Q1 बी आर, एम आई राइट। ये प्रोसेस हो चुका। Q1 ए बी Q1 बी बी, बी करेक्ट, ये प्रोसेस हो चुका है। Q1 ए बी बी Q1 बी बी Q1 ए बी फिर से बी, Q1 ए बी फिर से बी। देखो 5 एस थे, 5 ब्लू आ गए, ठीक है। यस सर। अभी क्या आया, Q1 बी बी Q2 स्टेट हो जाएगा और बी पॉप हो जाएगा। Q2 ये पॉप, करेक्ट। Q2 बी 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 पॉप। Q2 ये पॉप, Q2 बी बी
ये प्रोसेस B. Q2 एप्सिलॉन B यहाँ पर है, Q2 एप्सिलॉन B नहीं है, इसका मतलब क्या? फिर से not accepted. समझ में आ गया ये कैसे किया? यस सर। तो आपको जब भी बोला जाए डिजाइन अ पीडीएफ फॉर L इक्वल टू A रेज़ टू N B रेज़ टू N and greater than equal to 1, एक कोई भी स्ट्रिंग लो उसके हिसाब से ये बनाओगे। ये लिखा नहीं तभी तो चलेगा, पुश पॉप वगैरह ना वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये हो गया आपका पीडीएफ। अभी यहाँ पर क्यू क्या हुआ? कैपिटल क्यू। इस केस में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल क्यू क्या रहेगा इस केस के लिए, इस एग्जांपल के लिए कैपिटल क्यू क्या रहेगा? Q0 Q1 Q2 QF। Q0 Q1 Q2 करेक्ट। सिग्मा क्या रहेगा जो लैंग्वेज में दिया है ना, ये AB। AB। तो क्या रहेगा आपका इस केस में? स्टैक पर हमने क्या क्या यूज किया? ब्लू BR। सिर्फ बी और आर यूज किया, करेक्ट। उसके बाद क्या था इधर? डेल्टा। ये डेल्टा हमारा ये डेल्टा होगा, ये जो रहेगा ना ये डेफिनेशन, ये डेल्टा का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। ये डेल्टा हमने यहाँ पे दे दिया। अभी एफ क्या रहेगा इस केस में? करेक्ट है ना। इस केस में एफ क्या रहेगा? फाइनल स्टेट है ना एफ आपका, ये वाला, ये सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है ना आपका डेफिनेशन में। तो वो फाइनल स्टेट क्या होगा? ठीक है। और क्या था? Z0 क्या आएगा आपका? टॉप ऑफ द स्टैक। हमेशा हमने क्या लिया है यहाँ पर? R लिखा है ना। यस सर। ठीक है। और क्या बचा? Q सिग्मा टो F Z0, ये डेल्टा हो गया। और Q0 क्या है आपका इनिशियल स्टेट? Q0 ये, करेक्ट। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। तो आपको ये लिखना है और किसी भी स्ट्रिंग को ऐसे एक या दो स्ट्रिंग को आपको दिखाना है कि ये एक्सेप्टेड है नॉन एक्सेप्टेड। समझ में आ गया? यस सर। हम फिर से करते हैं एक एग्जांपल लेके। हमारे पास अभी L इक्वल टू A रेज़ टू N B रेज़ टू N+1। इसका मीनिंग क्या रहेगा? आपको पीडीएफ बनाना है अभी, तो नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज होने चाहिए। सारे नंबर ऑफ एज आने चाहिए पहले, उसके बाद नंबर ऑफ बीज आने चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ एज जितने उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ बीज होना चाहिए, करेक्ट। तो इसका पॉसिबल स्ट्रिंग्स क्या है आपके? ए बी बी ए ए बी बी बी, करेक्ट। ठीक है कि नहीं? यस सर। तो अभी ये पीडीएफ बनाएंगे हम, फिर रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं ये वीडियो डाल दूंगा और ये सारे ठीक तरीके से लिख के आपको व्हाट्सएप पर अदरवाइज मूडल पर डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा लैंग्वेज रहेगा। तो अभी हमारा लॉजिक क्या बनाएंगे इसके लिए? जैसे हमने यहाँ पर ब्लू ग्रीन लिया, ब्लू रेड लिया था ना, इसका लॉजिक क्या बनाएंगे? पहले तो क्या करो, नंबर ऑफ पेज जितने उसके लिए पुश कर दो, नंबर ऑफ बीज जो नंबर ऑफ पेज के इक्वल है उनको पॉप कर लो, आखिर में बचेगा बी, करेक्ट। एक ही बचेगा ना बी। यस सर। देखो यहाँ पर ये प्रोसेस हो चुका, ये बी बचेगा। यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा, ये बचेगा, करेक्ट। तो उस बी को लास्ट स्टेज क्या आएगा आपका? जो भी स्टेट रहेगा यहाँ पे बी रहेगा, यहाँ पे आर रहेगा। इसको सिर्फ आपको क्यू एफ आर लिखना है कि नहीं? यस सर। समझ रहे हो? ये लास्ट वाला बी की बात कर रहा हूं। तो अभी इनिशियल को क्या करेंगे? चलो इनिशियली हम लिखते हैं डेल्टा Q0 A R। हम सारे एज के लिए ब्लू डाल देंगे, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे यहाँ पर? बी आर। तो पहला ए हो चुका है, दूसरा ए क्या रहेगा फिर से? करेक्ट है कि नहीं? अभी सारे एज हो जाएंगे इससे। सपोज मैं अभी लेता हूं एग्जांपल A रेज़ टू 4 B रेज़ टू 5, है ना।
यहाँ पर है हमारा आर। चलो अभी बोलो, एज के लिए हम पुश करते गए तो ए रेस टू 4 ब्लू 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 ब्लू, ये हो गया ए रेस टू 4 के लिए ब्लू 4। ठीक है, ये पुश का काम ये दोनों ने कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, सारे एज के लिए हमने ब्लू डाल दिया, अभी पॉप करना है ना, तो बी जब आएगा, ये बी आएगा ना, अभी ए रेस टू 4 के लिए ब्लू आ गया, अभी बी शुरू होगा, 1 2 3 4, हर एक पहले जो 4 बीज है उनके लिए ब्लू निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा Q2 एप्सिलॉन Q2 BB। ये हमारा लास्ट वाला जो था ना, प्रीवियस वाला एग्जांपल, वैसे ही हो गया, ये 4 स्टेट्स 4 ट्रांजिशंस है ना। तो देखो, पहले ए के लिए ब्लू, दूसरे ए के लिए ब्लू, तीसरे ए के लिए, पहले ए के लिए ब्लू किया Q1 में गया, दूसरे ए के लिए ब्लू किया Q1 में ही रहा, Q1 में ही रहा, Q1 में रहा, तो सारे एज के लिए ब्लू डाल दिया। अभी Q1 में रहेगा हमारा स्टेट, और यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पे होगा बी, तो Q1 BB हम बोलते हैं Q2। अभी Q2 B B Q2 एप्सिलॉन Q2 BB Q2 एप्सिलॉन Q2 BB Q2 एप्सिलॉन, 4 एज हो चुके हैं, अभी बचेगा लास्ट वाला बी, एडिशनल है, तो हमारा ये स्टेट आएगा। करेक्ट, तो हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे Q2 B और लास्ट में रहेगा R। बराबर है ये अगर आता है तो यहाँ पे सीधा बोल दो, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? अभी मैं आपको चॉइस देता हूँ, बोलो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। एक बी के लिए अगर मैं ऐसे लिखूं तो हो जाएगा क्या? यहाँ पर मैं अगर QFR लिख दूं ना, दिक्कत क्या है, इसके आगे अगर एक बी और है, सपोज, है ना, 3 बीज है ना, तो 2 एज के लिए 2 बीज के लिए निकल गया। लेकिन यहाँ पर सपोज ऐसा स्ट्रिंग है ए रे ए बी बी, अभी आपके हिसाब से क्या हुआ, इन 2 ए के लिए जो पुश किया था इन 2 बीज के लिए निकल गया, लेकिन इसके बाद डायरेक्टली एप्सिलॉन ही आना चाहिए अगर ये स्ट्रिंग वैलिड करना है तो, है कि नहीं? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। अगर हमने ऐसा इमेजिन नहीं किया तो इसके बाद भी बी हो सकता है। आप यहाँ पर QF लिख दो लेकिन ये बी बच के रहेगा, तो ये होना नहीं चाहिए। इसके लिए हम इसको फिर से Q3 कर लेंगे, Q3 R, इस बी को प्रोसेस कर लेंगे। लास्ट में क्या बचेगा, Q3, अभी आपका टेप एम्प्टी हो जाना चाहिए और स्टैक पर ही होना चाहिए, उसके बाद ही QFR करना है। ऐसा क्यों किया, अगर मैं यहाँ पर QF लिख दूं QFR, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, है कि नहीं? ये स्ट्रिंग इसमें फिट होता है क्या? इस सेट में स्ट्रिंग फिट होता है क्या ये? नो सर। नहीं ना। अगर मैं यहाँ पर QF लिख दूं तो दिक्कत हो जाएगा ना मेरा। QF अगर बोल दिया इसका मतलब फाइनल में चला गया, लेकिन मेरा एक बी प्रोसेस करना बाकी रहेगा, इसीलिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से अभी क्या करेंगे हम, ये आपको ये दे रहा हूँ, ये दोनों ये वीडियो डालता हूँ तुरंत थोड़ी देर के बाद। आपको क्या करना है, इस लैंग्वेज के लिए बनाओ आपके हिसाब से A⁻n+1 B⁻n, क्या करना पड़ेगा बोलो, थोड़ा लॉजिक। सेम लॉजिक यूज करो, ए को पुश करो बी को पॉप करो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सपोज A⁻4 है तो यहाँ पे होना चाहिए B⁻3। करेक्ट, बराबर है ना? यस सर। मतलब एक ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक ब्लू ज्यादा रहेगा। करेक्ट, लेकिन यहाँ पर जब एप्सिलॉन आ जाएगा टेप पर, इसका मतलब ये ब्लू पॉप हो जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ये केयर किया हमने, ये वाला स्ट्रिंग, आप ये लिखने का ट्राई करो, होता है ना तो मुझे व्हाट्सएप पर डालना पर्सनल मैसेज करके, तो मैं वेरीफाई करके बताता हूँ आपको। ठीक है, यस सर।
अभी आपको अगर कुछ सवाल होगा तो पूछ लो।